Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also, we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@of affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 17 दिसंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम बात करें ओरोंदोई 2.0, ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? असम स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड रीज़न क्या था इस स्कीम को लॉन्च करने का? कि वीमेंस एंड जो बिलो पॉवर्टी द लाइन लोग रहते हैं उनके अकाउंट में 1250 रुपये हर महीने की 10 तारीख को जमा कर दिए जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी ओरोंदोई 2.0 स्कीम। नेक्स्ट आ जाता है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में होगा। कहाँ पर होगा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप FIH का? ये होगा इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में भी कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर एंड रौरकेला में ये जाके ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और अभी जो न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का? टाटा स्टील। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं ट्राइसोनिक विंड टनल की। अभी इसरो के द्वारा ये ट्राइसोनिक विंड टनल बनाई गई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। और ये 160 मीटर वाइड आपकी ट्राइसोनिक विंड टनल रहेगी। ये बनाई गई ताकि जो फ्यूचर स्पेस व्हीकल्स हैं उनके डिज़ाइंस को टेस्ट किया जा सके। बेसिकली टेस्टिंग के तौर पर इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंड वायासेट। इन दोनों के द्वारा अभी एक पार्टनर किया गया ताकि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके ग्लोबली बाय 2025। अगर आपको याद हो, ऐसे ही सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात कौन करता है? स्टारलिंक। ये क्या है? एक नेटवर्क सा बना रखा है इन्होंने। कई हज़ारों में सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई हैं, छोटी छोटी सैटेलाइट, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करके इंटरनेट प्रोवाइड करेगी इवन इन द रिमोट एरियाज। इन्हीं की राइवल कंपनी कौन है? वन वेब। वो भी सेम काम कर रही है, लेकिन ये वन वेब कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम की है। अभी याद हो तो स्पेसएक्स ने यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी वन वेब की कुछ 40 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा था। नेक्स्ट, तो यहाँ पे टारगेट ईयर ज़रूर याद रखना, बाय 2025 माइक्रोसॉफ्ट और वायासेट मिलके सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं ग्लोबली। नेक्स्ट आ जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इन दोनों के बीच में ये वो दोनों कंपनी हैं जो कि आपकी टॉप 100 आर्म मैन्युफैक्चरर्स कंपनी में लिस्ट की गई। आई रिपीट, टॉप
100 ग्लोबल आर्म मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी में 2021 की जो लिस्ट रिलीज की गई थी टॉप 100 की, उसमें से इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया की वो पहली कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन सा बना है, वो है IEX। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन सा है, IEX। यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर मैं पूछूं इंडिया का वो पहला स्टेट कौन सा है जो कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात करता है, वो है केरला। कब तक शिफ्ट कर देगा ये, 2040 तक इन्होंने टारगेट ईयर सेट किया है कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर देंगे, और इनका टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने का बाय 2050। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया अभी इंडिया के 9 नए प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, जिसमें से 5 आपके थे केरला से। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे, जब ये 9 का अभी आपको प्रोडक्ट को GI टैग मिला, जो टोटल टैग हो गए हैं इंडिया में GI टैग्स वो है 432। फॉर एग्जांपल जैसे मिथिलिया मखना बिहार से हो गया, सैफरन जम्मू कश्मीर से हो गया, और अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था गमोछा, इसको गमछा भी कह देते हैं, ये असम से बिलोंग करता है। हैंड वीमेन कॉटन क्लोथ रहता है ये आपका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंडी हुक की। आप इनको देख सकते हैं पिक्चर में, इनको अभी अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ 2032 के ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, यूरोपियन यूनियन ने अभी किनको बॉस्निया या फिर किसको अपना कैंडिडेट स्टेचर देने की बात की गई, वो है बॉस्निया को। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को रिलीज़ किया, और इस वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ने बताया कि जो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है वो है सिंगापुर, फॉलोड बाय न्यूयॉर्क एंड टेल अवीव, जो कि इजराइल की कैपिटल रहती है। पहले टेल अवीव फर्स्ट नंबर पे आता था, लेकिन अब सिंगापुर ने बाजी मार लिया है, और सिंगापुर वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बन गई है इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय न्यूयॉर्क ऑन सेकेंड एंड टेल अवीव ऑन द थर्ड पोजिशन। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम बात करें तो एक MOU साइन किया गया था बिटवीन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड टैक्स प्रोसिल, जो कि है, अगर बात करूं तो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इनके साथ। तो किसके साथ एक MOU साइन किया गया, CCI एंड टैक्स प्रोसिल के साथ, ताकि ब्रांडिंग की जा सके, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा सके कस्तूरी कॉटन इंडिया को। कस्तूरी कॉटन इंडिया की बात करें तो कस्तूरी कॉटन इंडिया ये आपका 7 अक्टूबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये किस लिए लॉन्च किया गया था, ताकि इंडिया के कॉटन का एक ब्रांड बन सके, जब हम उसको एक्सपोर्ट करें लेवल एक बाहर जाके, तो एक ब्रांड के तौर पे हम इसको एक्सपोर्ट कर सके, जो सिग्निफाई करता है वाइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर एंड इंडियननेस को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर यहीं पे याद रखेंगे, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कुछ 15 करोड़ रुपए खर्च करेगी ओवर द पीरियड ऑफ 3 कॉटन सीजन, फिस्कल ईयर 2023 से लेके फिस्कल ईयर 2025 के बीच में, ताकि इनकी कॉटन्स की प्योरिटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सके, इसको और बेटर बनाया जा सके। तो याद रखेंगे। फिर क्या कस्तूरी कॉटन ऑफ इंडिया के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक टाई अप हुआ, MOU साइन किया गया, वो है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया CCI ने MOU साइन किया टैक्स प्रोसिल के साथ, जो कि है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। कहाँ पर साइन हुआ था ये, दिस वॉज साइंड ऑन द कंक्लूडिंग डे ऑफ द काशी तमिल संगम इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर एक चीज़ याद रखेंगे, जो कस्तूरी कॉटन इंडिया मैंने बताया ये 7 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था, और इसी दिन ही आपका वर्ल्ड कॉटन डे भी होता है, वर्ल्ड कॉटन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, रीज़न क्या है इस MOU का इन दोनों के बीच में जो साइन हुआ, ताकि एंकरेज किया जा सके इंडस्ट्री को to work on the principle of self-regulation by taking complete responsibility of certification and branding of the Indian cotton। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। इसी के साथ याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक और यूनिक वन ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन लॉन्च किया गया था, वो है विरासत। ये विरासत क्या है, इट वॉज इन न्यू दिल्ली। ये सेलिब्रेट करने के लिए 75 ईयर्स ऑफ इंडिया के सेलिब्रेट करने के लिए हैंड वूमन सारीज को इंडिया में न्यू दिल्ली में लॉन्च किया था, और कितनी 75 को ही लॉन्च किया था, ताकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी सेलिब्रेट
किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं काजिंद 22 की। 22 का मतलब 2022 में हुई थी, छठा एडिशन था ये आपका काजिंद एक्सरसाइज का। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। इंडिया की तरफ से मैं बात करूं तो 11 गोरखा राइफल्स ये इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे इस रेजिमेंट के, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज से। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है, याद रखेंगे, पहली बार 2016 में ऑब्जर्व की गई थी अंडर द नेम प्रबल दोस्तिक। ये प्रबल दोस्तिक से नाम चेंज करके इसको 2018 में कर दिया गया एक्सरसाइज काजिंद। और अब यही छठा एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज काजिंद हमने ऑब्जर्व किया। कहाँ पर, लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी? मेघालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पे इस एक्सरसाइज को ऑब्जर्व किया गया? मेघालय में। नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इन दोनों के द्वारा अभी 5th यूथ कोलैब को लॉन्च किया गया फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनके लिए ये आपका 5th एडिशन ऑफ यूथ कोलैब टू सपोर्ट द यंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च किया गया 2022-2023 के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 5th एडिशन ऑफ द यूथ कोलैब, ये बेसिकली क्या एम रहेगा यहाँ पे, ताकि इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको फाइंड करना है, उनको एंकरेज करना, हु आर लीडिंग अर्ली स्टेज सोशल कंपनीज और इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ जैसे डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, जेंडर इक्वलिटी विया एंड वीमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर फिनटेक सॉल्यूशंस के लिए बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली लाइफस्टाइल, आपका एक्सेलरेटिंग सर्कुलर इकोनॉमी थ्रू अपसाइक्लिंग इनोवेशंस, बिहेवियरल नजेस फॉर लाइफ जो कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। ठीक है, अगर फिर यहाँ पे अगर पूछा जाए कि ये यूथ कोलैब है, ये कब लॉन्च किया गया था? 2017 में लॉन्च किया था। किसके द्वारा? यूएनडीपी, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इन्होंने सिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था एंड इट वाज ऑपरेशनल इन 28 कंट्रीज। फिर याद रखेंगे 2019 में यूथ कोलैब, जो कि लार्जेस्ट यूथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट है इन एशिया पैसिफिक रीजन, उनके द्वारा वाज लॉन्च किया गया था ये इनिशिएटिव बाय यूएनडीपी इंडिया एंड पार्टनरशिप विद एम नीति आयोग। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 में एम ऑफ नीति आयोग एंड यूएनडीपी इंडिया के द्वारा मिलकर ये 5वां एडिशन ऑफ यूथ कोलैब को लॉन्च किया गया था। अगर मैं यहीं पे बात करूं नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन की, ये 2016 में सेटअप किया गया था एंड इनके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी, और हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। ये तो हो गया एम की बात। नीति आयोग की अगर बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? परमेश्वरम अय्यर जी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं RODTEP। ये क्या होता है? RODTEP ये है रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। तो ये क्या है? रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। इस स्कीम के अंडर जो केमिकल सेक्टर्स है, फार्माक्यूटिकल सेक्टर्स है, आयरन एंड स्टील सेक्टर है, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब इंक्लूड कर दिया गया, मतलब टैक्स से एक्सक्लूड कर दिया गया। जो यहाँ पे टैक्स लगता था, टैरिफ लगता था, वो रिड्यूस कर दिया गया और इनके प्रोडक्ट्स को अब एक्सपोर्ट कराने की बात की गई। इससे क्या होगा? इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इन दिस केमिकल सेक्टर, फार्माक्यूटिकल सेक्टर, आयरन एंड स्टील सेक्टर। इस एक्सपेंशन के लिए कि हम एक्सपोर्ट करा सकें, इसके लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई बाय द गवर्नमेंट। यहीं पे आप देखेंगे इसके हिसाब से RODT स्कीम के हिसाब से अराउंड 8731 एक्सपोर्ट आइटम्स को इंक्रीज करके कितना कर दिया जाएगा? 10,342 एक्सपोर्ट आइटम्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमें कम से कम आप देखेंगे तो 2 से 2,500 यहाँ पे एक्सपोर्ट आइटम्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा? इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ ये आपकी रोड टैप स्कीम की ही, ये रोड टैप स्कीम क्या है? इट रिफंड्स द एम्बेडेड सेंट्रल स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज एंड टैक्सेस टू एक्सपोर्टर्स दैट वर प्रीवियसली नॉट रिबेटेड और रिफंडेड। मतलब जो पहले रिबेट और रिफंड नहीं किए थे, उन टैक्सेस को, उन ड्यूटीज़ को वापस रिफंड कर दिया जाएगा टू दोज MSMEs। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये किस लिए? ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। फिर हम बात करते हैं स्वर धरोहर फेस्टिवल की। ये स्वर धरोहर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो याद रखेंगे इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था स्वर धरोहर फेस्टिवल को। 3 दिन लंबा ये आपका स्वर धरोहर फेस्टिवल था।
ठीक है, दैट शोकेसेस द आइकॉनिक आर्ट एंड कल्चर, रिच लिटरेरी आर्ट एंड हेरिटेज ऑफ इंडियन स्टेट्स एट सेंट्रल विस्टा, जो कि न्यू दिल्ली में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। यहीं पे चीफ गेस्ट कौन बन के आए थे? मेहताब अली, जो कि एक सितार प्लेयर है, एंड पंडित ललित प्रसाद, जो कि एक क्लासिकल वोकल रहेंगे। ऑलराइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं IREDA। इन्होंने अभी एक लोन एग्रीमेंट साइन किया SJVN ग्रीन एनर्जी के साथ, ताकि 1000 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट को सेटअप किया जा सके। और ये पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे रहेगा आपका? बीकानेर। कहाँ पर है बीकानेर? राजस्थान में। ठीक है, आई रिपीट, IREDA जो कि है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया 4444 करोड़ रुपए का सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ, ताकि 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट को सेटअप किया जा सके। कहाँ पर? बीकानेर, राजस्थान में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। यहीं पे अगर मैं बात करूं SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? SL शर्मा। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। मूविंग ऑन, सिडबी की बात करते हैं। सिडबी ने अभी कोलैबोरेट किया M1 एक्सचेंज के साथ एज अ फाइनेंसर टू बूस्ट लिक्विडिटी फॉर MSMEs। MSME सेक्टर को बूस्ट लाने के लिए, MSME सेक्टर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो MSMEs हैं वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकें एट लो रेट, उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके एट लो इंटरेस्ट। इसीलिए सिडबी ने भी कोलैबोरेट किया M1 एक्सचेंज के साथ। सिडबीज क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने टीम किया या पार्टनरशिप किया M1 एक्सचेंज के साथ, जो कि एक फाइनेंसर है, ताकि लिक्विडिटी होता है इन हैंड पैसा, प्रोवाइड किया जा सके MSMEs को एट लो इंटरेस्ट rates. SIDBI is an apex financial institution dedicated to the promotion, funding and development of MSME. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं RGICL। इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी पॉलिसी। ये रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी पॉलिसी क्या है? इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो ऑफर करता है कस्टमर को एंडलेस बेनिफिट्स बेस्ड ऑन देयर जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, जो फाइनेंशियल क्रेडिट स्कोर होता है ना, उसके बेसिस पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स आपको, काफ़ी सारे एंडलेस बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर दिस रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी पॉलिसी, RGICL के अंडर। ठीक है, ये आपकी एक प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी, जो कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई। इसके अंडर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 90 साल के छोटे से बच्चे से लेके 18 से 65 साल के लोगों के लिए आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। इट कैन बी बॉट फॉर 1 साल, 2 साल या 3 साल एज पर द नीड। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। फिर बात करते हैं टाटा AIA लाइफ की। इनके द्वारा अभी एक एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड को लॉन्च किया गया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड को लॉन्च किया, जो कि एक NFO के तौर पे लॉन्च किया जाएगा, न्यू फंड ऑफरिंग, जो कि 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में रहेगा। और यहाँ पे जो पर यूनिट है 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सेल किया जाएगा इन अंडर दिस NFO। इसके बाद जो प्राइस होगा वो अलग होगा, लेकिन अभी अगर NFO के अंडर आप बाय करेंगे 15 से 30 दिसंबर के बीच में, तो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फंड होगा ये इन्वेस्ट करेगा इन द स्टॉक्स ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ मिड साइज, मिड कैप जो होते हैं उनकी मिड कैप कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ठीक, चलो, और इसी के अंदर याद रखेंगे अप टू 30% ऑफ द पोर्टफोलियो कुड बी अलोकेटेड बाय फंड टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इक्विपमेंट्स आउटसाइड द मिड कैप रेंज। यहीं पे अगर मैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? नवीन तेलियानी। चेयरमैन कौन रहेगा? सौरभ अग्रवाल। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं EESL। इन्होंने एक अभी MOU साइन किया किसके साथ? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एनर्जी कंजर्वेशन मिशन के साथ। आई रिपीट, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL। इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के साथ अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन मिशन इन एन एफर्ट टू प्रोपोगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन तेलंगाना। तेलंगाना में एनर्जी कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगाने के लिए
EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने एक MOU साइन किया एनर्जी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इंडिया के साथ। ठीक है, तो याद रखेंगे किन्होंने, आई रिपीट, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने एक MOU साइन किया इंस्टीट्यूशन ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स इंडिया के साथ अंडर एनर्जी कंजर्वेशन मिशन, ताकि जो इम्पोर्टेंस है एनर्जी कंजर्वेशन की उसके बारे में पता लगाया जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके। दिस पार्टनरशिप एम्स टू कंडक्ट अवेयरनेस सेशंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अक्रॉस 30 स्कूल्स इन तेलंगाना में इसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही ये लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ तेलंगाना में EESL ने कुछ 15.53 लाख LED स्ट्रीट लाइट को इंस्टॉल किया एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। द इनिशिएटिव लाइट्स हैव बीन रिप्लेस्ड with energy efficient LED lights which offer better visibility and reduce greenhouse emissions। ठीक है, EESL की बात करें तो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, विशाल कपूर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कब इस्टेब्लिश किया गया, 2009 में। मूविंग ऑन, रिलायंस ग्रुप ने अपना खुद का FMCG जो होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम रहेगा इंडिपेंडेंस। कहाँ पर लॉन्च किया गया, गुजरात में इसको लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट याद रखेंगे। इंडिपेंडेंस किस कंपनी का FMCG ग्रुप है, रिलायंस का। देन अवार्ड पे आ जाते हैं। राफेल नडाल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, इनको अभी मेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022 के टाइटल से सम्मानित किया गया और ये इनका 5th टाइटल रहेगा। वहीं पे अगर ईगा स्वेतिक की बात करें, ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं और इनको ईगा स्वेतिक को क्राउन किया गया एज द वीमेन ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखेंगे। ITF की मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट कौन है, डेविड हगैटी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, लंदन UK में। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 1930 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पर आते हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी को फीचर किया गया ऑन द 6th एनुअल ब्लूमबर्ग 50 लिस्ट में। गौतम अडानी जो कि बिजनेसमैन है, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और चेयरपर्सन है अडानी ग्रुप के, इनको नेम किया गया एज द ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक ऑफ द 6th एनुअल ब्लूमबर्ग लिस्ट 50 लिस्ट जो रिलीज की जाती है, ये होती है लिस्ट ऑफ ब्लूमबर्ग 50 द पीपल हु डिफाइन ग्लोबल बिजनेस इन 2022। इन्हीं की अगर हम बात करें तो गौतम अडानी ने अराउंड $49 बिलियन से अपनी वेल्थ को पर्सनल वेल्थ को बढ़ाया है इन 2022 अलोन। इसी लिस्ट में आप ध्यान देंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट दलीप सिंह एंड काफ़ी अदर लोगों का भी नाम यहाँ पे लिस्ट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया के द्वारा भी एक सक्सेसफुली टेस्ट किया गया अग्नि 5 मिसाइल को। ये रात का जो नाइट ट्रायल्स होते हैं ना, वो ट्रायल की हम बात कर रहे हैं। एंड जो पहला ट्रायल हुआ था इसका 2012 में हुआ था और अब जो 9वां ट्रायल हो रहा है ये आपका नाइट ट्रायल था जो कि न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि मिसाइल का था। अग्नि 5 इसका नाम रहेगा। तो क्या क्या याद रखना है, जो अग्नि 5 मिसाइल है ये एक न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है। इसको APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से टेस्ट किया गया था। 9वीं फ्लाइट टेस्ट था ये इसका अग्नि 5 का। पहला टेस्ट 2022 में हुआ था। ठीक, अगर इसी की मैं बात करूं तो ये न्यूक्लियर कैपेबल है। सरफेस टू एयर मिसाइल रहेगी, ये सरफेस टू एयर ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी। इसकी रेंज की बात करें तो 5000 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी। 17 मीटर लॉन्ग ये आपकी 1.5 टन तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और जो इसकी एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं फिर 36 राफेल जेट की जो इंडिया ने रिसीव किया है। इनका फाइनल राफेल जेट रहेगा। इस राफेल जेट का नाम जो दिया गया डेजिग्नेटेड किया गया वो क्या है, RB008। रीज़न बीइंग RB008 देने का बिकॉज RB जो थे ना वो चीफ एयर मार्शल थे राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। उनको ऑनर करने के लिए, चीफ ऑफ एयर मार्शल थे जो इंडियन एयरफोर्स के, उनको ऑनर करने के लिए उनके बिहार पे इसका नेम किया गया RB008। फ्रांस से रिसीव किया 36वां राफेल जेट जो कि फाइनल राफेल जेट था, इंडिया ने रिसीव किया। ठीक है, यहीं पे याद रखेंगे इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट 2016 में साइन हुआ था। और अंडर दिस 36 राफेल जेट प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रांस के द्वारा इंडिया को फॉर अराउंड 60,000 करोड़ रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ ईच जेट विल बी अराउंड 670 करोड़ रुपीज़, मतलब 7.87 बिलियन यूरो के करीब।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभी एक चिक पी की नई ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी लॉन्च की गई जिसका नाम है पूसा JG16। पूसा क्यों रखा गया कि जो पूसा इंस्टीट्यूट है ICAR को ही पूसा इंस्टीट्यूट बोला जाता है। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनका आम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको पूसा इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है। तो उनके द्वारा एक नई ड्रॉट रेजिस्टेंट चिकपी की वैरायटी लॉन्च की गई, डिस्कवर की गई, वो है पूसा JG16। ये आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इन द ड्रॉट एरिया। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बुंदेलखंड एरिया ऑफ यूपी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। छत्तीसगढ़ में, साउदर्न राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ऐसी जगह जहाँ पे ड्रॉट ज़्यादा पड़ता है, सूखा ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर ये वैरायटी आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। यहीं पे अगर मैं बात करूं ICAR की, ICAR के जो डायरेक्टर जनरल रहेंगे वो कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक। 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। डॉक्टर विक्रम संपत की बुक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, इसको भी लॉन्च किया गया था। बेंगलोर बेस्ड हिस्टोरियन डॉक्टर विक्रम संपत के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया और पेंगुइन वाइकिंग के द्वारा इसको पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 51st विजय दिवस। इसी को विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 51st एडिशन रहेगा जो हमने 16 दिसंबर 2022 में ऑब्जर्व किया। रीजन क्या था? टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट द पाकिस्तान। जो 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी उसी को हम बोलते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी। ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोला जाता है उसको। उसके खिलाफ जो इंडिया की विक्ट्री हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम ये विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं। और 2022 में हमने कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया? 51st एडिशन हमने ऑब्जर्व किया 2022 में विजय दिवस का। विजय दिवस को ही हम डे ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक MOU साइन किया सिंगापुर के साथ अहेड ऑफ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ताकि यूपी का हमारे जानती हैं टारगेट क्या है? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए इन्होंने बात की। और इसी के अंडर ये काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव है। जैसे अगर आपको याद हो तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को प्रमोट किया जाएगा फॉर द सेम। तो अभी याद रखेंगे यूपी गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया था यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान। और ये रीज़न क्या था? ताकि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लाया जा सके और 50 बिलियन इन्वेस्टर्स की कमिटमेंट टारगेट को पूरा किया जा सके, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को। फिर अगर मैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात करूं तो ये आपकी 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2023 में ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया एम क्या है यहाँ पे? टारगेट रह गया $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करना एंड टू क्रिएट अ $5 ट्रिलियन नेशनल इकोनॉमी इन फ्यूचर। आपको याद हो सरकार बोलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने वाले हैं, करेंगे, जल्दी करेंगे। तो उसके लिए सिमिलरली उसी के लिए हमें यूपी का टारगेट है कि अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करनी है तो हमें यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया गया एंड इन्होंने ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को भी लॉन्च किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे एज द नेम सजेस्ट। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन करंट अफेयर्स पे। CCI एंड टैक्स प्रोसिल इन्होंने एक MOU साइन किया ऑन ब्रांडिंग ट्रेसिबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कस्तूरी कॉटन इंडिया। काजिंद क्या है? ये 6ठा एडिशन रहेगा इंडो कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, जो कि मेघालय में स्टार्ट की गई थी। नीति आयोग के एम एंड UNDP के द्वारा 5वां यूथ को लैब 2022-23 का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्च किया गया। फिर RODTEP स्कीम ने इंक्लूड किया केमिकल सेक्टर, फार्माक्यूटिकल सेक्टर, आयरन एंड स्टील सेक्टर को फ्रॉम 15 दिसंबर 2022। और इससे क्या होगा? आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। ESIC इन्वेस्ट करेगा अप टू 15% ऑफ द सरप्लस फंड्स इन स्टॉक मार्केट थ्रू ETF। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज कराया स्वर धरोहर फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। IREDA ने साइन किया 4,444 करोड़ का लोन एग्रीमेंट विद SGEL फॉर 1000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट इन बीकानेर राजस्थान।
फिर सिडबी ने कोलैबोरेट किया M1 एक्सचेंज के साथ एज अ फाइनेंसर टू बूस्ट लिक्विडिटी फॉर MSMEs। RGICL ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी पॉलिसी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड को। EESL ने साइन किया एक MOU विद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एनर्जी कंजर्वेशन मिशन। नेक्स्ट आ जाता है रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया एक FMCG ब्रांड जिसका नाम रहेगा इंडिपेंडेंस और गुजरात में इसको लॉन्च किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर टेनिस के प्लेयर राफेल नडाल को नेम किया गया मेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022 के लिए और ईगा स्वेतिक को नेम्ड एज द ITF वीमेन वर्ल्ड चैंपियन। राफेल नडाल आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से, और ईगा स्वेतिक ये आपकी पोलैंड से बिलोंग करती है। फिर गौतम अडानी ने फीचर किया ऑन द 6th एनुअल ब्लूमबर्ग 50 लिस्ट में। मैट फ्रेडिक्सन इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क एंड इंडिया ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया नाइट ट्रायल्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल इग्नि 5 मिसाइल। इंडिया ने रिसीव किया इट्स फाइनल 36 राफेल जेट फ्रॉम फ्रांस। और ICAR-IERI जिसको पूसा इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है, इन्होंने एक ड्रॉट रेजिस्टेंट चिकपी वैरायटी को डेवलप किया पूसा JG16। नेक्स्ट बात करें डॉक्टर विक्रम संपत की बुक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत को लॉन्च किया गया। 51st विजय दिवस 2022 में ऑब्जर्व किया गया और ये विजय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 दिसंबर को। यूपी गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया सिंगापुर के साथ अहेड ऑफ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने लॉन्च किया एक तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन एंड एज वेल एज एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला रहेगा विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पार्टनर किया किस डिपार्टमेंट के साथ टू डेवलप कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तीसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इनॉग्रेट किया 10 डिस्ट्रिक्ट कोड डेजिग्नेशन 10 डिस्ट्रिक्ट कोड डिजिटाइजेशन हब्स इन विच स्टेट। चौथा, Airbnb ने एक MOU साइन किया किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ टू प्रमोट इंक्लूसिव टूरिज्म। और पांचवा, बेपोर उरू इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट। तो ये 5 आपके होमवर्क रहेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इसी के साथ साथ आज हमने एक और चीज़ आपसे पूछी, ज़रा बताओ इस जो मैं टॉपिक देने वाला हूँ ना, इस पे आपको डिस्कशन करना है कमेंट सेक्शन में। आपको अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने हैं एंड लोगों के साथ एक आर्ग्यूमेंट, सेंसिबल आर्ग्यूमेंट करनी है, सेंसिबल डिस्कशन करनी है कमेंट सेक्शन में कि आपका मानना क्या है, आपको क्या लगता है इसके बारे में। क्या 2023 में रिसेशन आएगा? रिसेशन होता है मंदी। क्या 2023 में मंदी आएगी? इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ रखिए। आपको क्यों लगता है मंदी आएगी? अगर नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी? क्या गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे? स्टॉक मार्केट बढ़ेगी? क्या क्रिप्टो बढ़ेगी? ये सारी चीज़ें आप बात कीजिए। क्या हाउसिंग क्रैश आएगा? ठीक है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे रिसेशन के बारे में डिस्कस करना है, तमीज़ से अच्छे से डिस्कशन करना है, ठीक है, हेल्दी वे में कि मज़ा आएगा। ऑलराइट। और फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर दें कि आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें। ठीक है, तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि इस डिस्कशन का क्या रिजल्ट निकलता है और बच्चों की थिंकिंग क्या है, जो पढ़ रहे हैं उनको क्या लगता है रिसेशन के बारे में। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.